والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبع منه العلماء رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج 24 نومبر 2019 بروز اتوار ہے۔ بندہ میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے جن کے ایصال ثواب میں ہم جمع ہیں۔ حضرت سے ہمارا والد اور بیٹے والا تعلق تھا۔ رب کریم اپنی مغفرت کی انتہا فرمائے، اللہ ان کی مرکز کو جنت الفردوس کا ٹھکانہ بنائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے تمام ان چاہنے والوں کو، حضرت مولانا رحمت الرحمن کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کا جانشین فرمائے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر بندے نے جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ اما جان عائشہ فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا، کہ اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشگی کی جگہ ہوتی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس قابل تھا کہ ان کے سر پہ ہمیشہ زندہ دنیا میں رہنے کا تاج رکھا جاتا۔ لیکن جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما گئے، تو اب دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ میرے دوستو، موت العالم موت العالم ہوتی ہے۔ ایک عالم کی وفات ایک عالم کی وفات ہے، اور ایک خالی عالم نہیں بلکہ عالم اور علماء کے استاد، عالم اور علماء کے مرشد، عالم اور ایک جماعت کے قائد، یہ بہت بڑی نسبتیں ہیں جو اللہ رب العزت کسی بندے پہ جمع فرما دے۔ ایک عربی شاعر نے کہا لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ پر یہ چیز بعید نہیں ہے اللہ تمام عالم کی نسبتوں کو کسی ایک فرد واحد میں جمع فرما دے۔ حضرت پیر سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بالکل بہترین مصداق تھے۔ میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے شفقتوں کی انتہا پائی ہے۔ یقین مانیں میرے ساتھ حضرت کی کئی یادیں وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے میں الہ آباد آیا تھا تو حضرت نے فون فرمایا تھا کہاں مولانا درخواستی اور کہاں میں خود کو دیکھوں۔ اتنا جو ہے نا کسی کی شفقت کے لیے بندہ اپنے درجے کے لیول سے نیچے اتر کے فون کرے۔ فرمایا کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ نے آنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شفقتیں ہیں۔ میرے دوستو، الحمدللہ 2-3 بار سفر کا اتفاق ملک اور غیر ملک میں بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ دبئی کے سفر میں اتفاق سے حضرت بھی وہاں تھے، میں بھی ان دنوں میں وہیں تھا۔ ہم ٹرمینل 3 سے جب ایئرپورٹ داخل ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ شیخ آئے ہوئے ہیں، تو ہم ایئرپورٹ پر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ہمارا جہاز اور سواری بھی ایک تھی، تو وہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا ایمریٹس کا سفر تھا، دبئی ٹرمینل 2 سے لے کر یہاں ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک۔ اس میں ہم نے الحمدللہ 3 نمازیں اکٹھی باجماعت وہ جہاز کے دم میں جا کر پڑھی ہیں۔ تو اس میں میرا ساتھ رہا ہے۔ وہ اس وقت جو بندہ جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے نا، نہ کوئی موبائل کام کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی میسج اور نہ کس سے گفتگو ہوتی ہے۔ یا حضرت ذکر فرما رہے تھے، تلاوت کی باتیں جاری تھی، یہ دینی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، اور ادھر وفات کی خبر جب میں نے سنی، میں نے مولانا رحمت الرحمن سے تعزیت تو کر لی، لیکن دل واللہ ابھی بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، مجھے تیری مرگ ناگہاں کا ابھی تک یقین نہیں ہے۔ واللہ العظیم کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں
जब राजनपुर का नाम जहन में आए, रुझान का नाम जहन में आए, तो शेख की शख्सियत लाजिम और मलज़ूम होती है। यकीन मानिए मेरा तो आज वही हाल है जैसे वो एक देहाती के लिए लिखा है ना कि जब वो घर में बैठा था तो रसूलुल्लाह दुनिया में मौजूद थे और घर से चला इस नीयत से था कि आका नामदार की ज़ियारत करूंगा, रसूलुल्लाह के जलवों को जो है ना मैं अपनी नज़रों में सजाऊंगा। लेकिन वो जब घर से चला अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए। जब ये हफ्तों का सफ़र करके मदीना मुनव्वरा आया, ये हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की रिवायत जामे तफसीर अहकामुल कुरान कुर्तुबी में मौजूद है। फरमाया कि जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए थे। मुझे बताएं उस बंदे के दिल के आलम, आज मैं अपने दिल के आलम को यही देखता हूँ। यकीन माने हम जब भी यहाँ आते हजरत की ज़ियारत से महफूज होते। आज हम यहाँ आए हैं तो शायद की शफ़क़तों से हमें वो वास्ता नहीं पड़ रहा, वो मामला नहीं है। मेरे दोस्तों मेरी दुआ है अल्लाह करीम इन पर करीम करम का मामला फरमाता रहे। कई निस्बतें रब ने इकट्ठी कर दी। देखें 63 साल की ज़िंदगी ये अपने हाथ में नहीं होती, ये निस्बतें अपने हाथ में नहीं है, ये मेरे मौला के हाथ में है। वो कहते हैं ना अल्लाह पाक तो तमाम कायनात की मिल्कियतों के मालिक हैं। रब ने कैसी निस्बत दी है, जिस नबी के गुण गाए पूरी जिंदगी, जिस नबी की तालीमात आम की पूरी जिंदगी, जिस नबी के अहकामात पर अमल कराया पूरी जिंदगी, रब ने जिंदगी के दिन भी उस नबी की जिंदगी की तरह बना दिए। 63 साल मजाक नहीं है। और इसमें कितना अरसा से और ऐसे पसमानदा इलाके में बैठकर जहां आम तौर पे काम मुश्किल होता है, बड़ी जगहों में जहां पर काम जारी हो वहां पर काम लेकर चलो। जहां जैसे कहते हैं ना गड्डी लेनते यूं जगह हो ना तो फिर काम आसान होते हैं। बड़े शहरों में बैठकर आप मदरसा बनाएं, कराची में बैठ के आप आसानी से चला लेंगे। आज के दौर का बुखारा और समरकंद है वो उलमा के लिहाज से। लेकिन इस जगह में जहां आमतौर पे दीनी मामलात ना हो, जहां घुटन मराइल हो, जहां तकलीफ हो और जहां पसमानदा जिंदगी पर लोग जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो, वहां बैठकर एक शमा जलाना दीन की, वो अभी नहीं, वो 4 और 5 दहाइयों पहले बैठकर जलाना, वो एक अरसा में रुझान आया। मुझे फरमाने लगे आपने यहाँ सरेकी में तकरीर करनी है। कहा मेरी बलोच बिरादरी है, ये उर्दू से नावाकिफ है, सरेकी की इनको मजा रखती है, तो आपने सरेकी में बात करनी है। इस जगहों में बैठकर जहाँ 40 साल इस हफ्ता गुजारने के बाद भी इतनी पसमानदगी मौजूद हो, मुझे बताएं वो जब काम शुरू कर रहे थे तो हालात क्या हो, किस तर्ज पे उस बंदे ने काम शुरू किया, किस तर्ज पे उसने। और बंदे के काम ऐसे नहीं होते, अल्लाह ऐसे काम नहीं लेते, इसके लिए कुड़न मराहल होते हैं। आज लोग गुलशन देखते हैं, आज लोग यहाँ बहारें देखते हैं, उन्हें नहीं पता कितने गिलास आंसुओं के इनकी बहारों के लिए लगे हैं, कितने आंसुओं को जमा किया गया है, क्या क्या कुड़न और दुखड़ों को जमा किया गया है, क्या अल्लाह से मांगा गया। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों और वो रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके फैज़ान की बातें मुझे हज़रत ने सुनाई थी कि मैं किस तरह उंगली पकड़ के अपने नाना जान के पास चलता और रब ने वही फैज़ यहाँ पर जिंदा फरमा दिया। और मेरे दोस्तों में एक जुमला मजीद कहता हूँ, सुनिए। हज़रत शेख दुनिया से गए हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हम पसमानदगान की जिम्मेदारी है, हम शेख के फिक्र को दुनिया से नहीं जाने देंगे, हम शेख की मेहनतों को दुनिया से नहीं जाने देंगे। जैसे हजरत शेख के साथ हम जिंदगी में वफादार रहे, उनकी औलाद के साथ भी हम वफादार रहे। सुनो, लोग जिंदगी में कदर करते हैं, वफात के बाद कौन पूछता है, लेकिन असल यारी निभाने का वास्ता मौत के बाद शुरू होता है। आपने सुना होगा ना कि यार वो है जरा कंड कुल सुझाने कमर से, कोई कंड दा माना सिर्फ कमर नहीं है, कंड फेरा नहीं, कंड दा माना होता है कमर फेर के जाना भी माना होता है। याद रखो वफात के बाद मामलात चलते हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, हज़रत उस्तादी दामत बरकातुहुम जब अल्लामा खालिद महमूद सुमरू रहमहुल्लाह की शहादत के बाद उनके यहाँ गए तो उनके फर्जंदगान को उस्तादी ने फरमाया डॉक्टर खालिद महमूद से हमारी यारी थी, उससे ताल्लुक था, उस वक्त आते थे तो डॉक्टर साहब के लिए आते थे, अब आएंगे तो डॉक्टर साहब की यारी निभाने के लिए आएंगे।
तो मेरे दोस्तों, उस वक्त आप हज़रत शेख की दुआएं लेने आते थे, अब आओगे, अब ताल्लुक रखोगे, अब शेख की यारी निभाने आएंगे। मेरे दोस्तों याद रखना, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक लेकर चले। तमाम मुसलमानों ने सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ वैसा निभाया जैसे रसूल अक़दस के निभाया जाता है। एक आलिम की वफ़ात, एक वारिस अंबिया की वफ़ात है, एक वारिस नबी की वफ़ात है, उसकी विरासत बे इल्म, इनकी विरासत बे इल्म, इस इल्म की विरासत के साथ यारी निभाओगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको अपने सलामती रखे। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूँ, बाद लोग दुनिया में आते हैं, आने के बाद चले जाते हैं, आने के बाद उनकी बातें लोग याद करते हैं, लेकिन उलमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सआदत दी है, जब ये दुनिया से जाते हैं ये ऐसी अपनी रूहानी औलादें पैदा करके जाते हैं जो इनके लिए बराबर अल्लाह से मांगते रहते हैं। हदीस पाक में है, जब बंदा फौत हो जाए तो अमल बंद हो जाते हैं, लेकिन ये उस बंदे के लिए है जिसने दीन की मेहनत दुनिया में न की हो। ये उस बंदे के लिए है जिसने दीन का बूटा दुनिया में न लगाया हो, दीन का जो है ना, क्या कहते हैं, मेहनत पर अमल करने का मामला न किया हो। हज़रत शेख का मामला वो नहीं है। इन्होंने पीछे औलाद अपनी नस्बी भी छोड़ी है, औलाद रूहानी भी छोड़ी है। हदीस पाक में वलद यदउ लहू, ऐसी औलाद छोड़ के जाएं जो अपने वालिदैन के लिए मांगती फिरे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद आपकी खिदमत में कहूँ, बंदे दुनिया से आते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन दीनी तहरीकों को मौत नहीं आती, दीनी तहरीकों को वफात नहीं आती, दीनी निस्बतों को वफात नहीं आती, तालीमात कभी मुर्दा नहीं होते, अहकामात कभी खत्म नहीं होते। शेख दुनिया से चले गए, हम भी चली जाएंगे, लेकिन जिस परचम को वो बुलंद करके गए, जिस झंडे को उठा के गए, जो आलम हमारे हाथों में देकर गए, इसे सर बुलंद रखना। और आलम सर बुलंद रखने पे तकलीफें आए तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, अब 113 न उतारते, एक सूरत उतारते, सूरत वल असर, इंसानियत की हिदायत के लिए काफी हो जाता। इस पर गौर करें ना कि सूरत वल असर में क्या मजमून है जो इंसानियत की हिदायत के लिए काफी होता। जो इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस अल मुतवफ़ा 204 हिजरी रहमहुल्लाह, इतना बड़ा आदमी, इसके लिए जुमला फरमा गया है। मेरे दोस्तों, सूरत वल असर में रब ने 4 बातें की हैं। कसम ज़माने की खा के फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ने ईमान की बात की है, मसलून अमल की बात की है, और हक की दावत की बात की है, उसकी तकलीफ पर छोड़ना नहीं, सब्र करके डटे रहने की बात की है। हुज्जतुल्लाह फिल अर्द रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू की ज़ौक़ में मैं अपने उस्ताद मोहतरम के अंदाज में इसका तर्जुमा आपकी खिदमत में वो पेश करता हूँ जो बामुहावरा बने। फरमाया बल असर, रब ने ज़माने की कसम खाई है। आमतौर पे तर्जुमा होता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर ईमान वाले, व अमिलुस सालिहात, नेक अमल वाले, व तवासौ बिल हक़, हक की वसीयत वाले, व तवासौ बिस सब्र, सब्र की वसीयत वाले। फरमाया अगर बामुहावरा तर्जुमा करें तो बात यूं नहीं बनती, बल्कि मसला निखर के सामने आता है। फरमाया वल असर, रब ने कसम खाई है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वही इंसान कामयाब है जिसमें 4 निशानियां हो। नंबर 1, इल्लल्लज़ीना आमनू, उसका अकीदा ठीक हो, व अमिलुस सालिहात, अमल सुन्नत के मुताबिक हो, व तवासौ बिल हक़, ठीक अकीदे और अमले साले मसनून अमल की दावत देता हो, व तवासौ बिस सब्र, अगर इस दावत के ज़ुमरे में, दावत के नतीजे में, दावत की पैदाइश पर मुश्किलात आते हो, मुश्किलात बर्दाश्त करता हो, दावत को न छोड़ता। तवज्जो रखें, इस आयत के ज़ुमरे में आज के माहौल में मैं एक बात समझाने लगा हूँ। ईमान और अकीदा एक ही चीज़ है, इल्लल्लज़ीना आमनू या इल्लल्लज़ीना यअतक़िदू, एक ही माना में है, एतक़ाद हो या ईमान हो। सबसे पहली बुनियादी बात है ईमान बंदे का, अकीदा बंदे का ठीक होना चाहिए। ईमान और अकीदा ठीक ना होना, करोड़हा नेकियां भी करते जाओ, वो नेकी नेकी नहीं बनती। कोई आपको कहे कि अमेरिका के सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 माह के रोजे रखे हैं,
हम कहेंगे एक रोजे का सवाब भी नहीं है। लोग पूछेंगे क्यों, तुम 1 महीना रखो तो सवाब है, उसके 2 महीने के सवाब नहीं है। हम कहेंगे जी वजह ये है उसका ईमान और अकीदा ठीक नहीं। तो पहली चीज है ईमान और अकीदे का ठीक होना। दूसरी चीज वामिलुस सालिहात, अमल सुन्नत के मुताबिक हो। मैंने अमल साले का तर्जुमा मसनून अमल किया है ये बात समझाने के लिए कि अमल साले बनता तब है जब सुन्नत के मुताबिक। अगर सुन्नत से हटके हो, रसूलुल्लाह की तालीमात से हटके हो, पैगंबर के फरामीन और अहकामात से हटके हो, वो अमल साले नहीं है, वो अमल ताले है। वो गलत अमल है, वो बुरा अमल है, वो जो है ना बद अमल है। वो ठीक अमल बनता ही तब है जब प्यारे हबीब के तरीके के मुताबिक हो। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसका अकीदा ठीक हो, वामिलुस सालिहात, अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अच्छा, उसने दुनिया में 2 काम करने हैं। वो काम क्या है? फरमाया वतवासौ बिल हक। तवासी बिल हक क्या है? मतलब ये है कि जो पीछे वो गुजरा है, अकीदा ठीक होना, अमल मसनून होना, इसकी दावत आगे चलाता रहे। इसे कहते हैं तवासी बिल हक, हक बात की वसीयत करना। याद रखो हदीस पाक में है, अपने भाई को जुल्म से रोको। आपने अपने भाई को जुल्म से रोकना है। मजलूमियत की हालत में या जुल्म की हालत में आपने अपने भाई को ठीक रास्ते पे रहने की दावत दे दी है, बुरे रास्ते से रोकना है। ये जिम्मेदारी आले इस्लाम की, उलमा की, दीन के जानने वालों की इस धरती पे है कि वो अपने दामे दिरमे कदरे सुहने मेहनतें करके दीन की दावत फैलाते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को जुल्म से रोकते हैं। जुल्म किसे कहते हैं? काजी मोहम्मद आला थानवी इसकी तशरीह करते हैं, वज़उ शै फी गैरि महल्लिही फहुवा जुल्मुन। कहा जिस जगह जिस चीज का इस्तेमाल हो उससे हटा के मुखालिफ जगह में उस चीज का इस्तेमाल करना ये जुल्म कहलाता है। अकीदा तौहीद के मुकाबले में अकीदा शिर्क जुल्म कहलाता है, सुन्नत के मुकाबले में बिदअत जुल्म कहलाती है, मुहब्बे सहाबा के मुकाबले में बुग़्ज़े सहाबा जुल्म कहलाता है, इताअते अइम्मा के मुकाबले में तनकीदे अइम्मा जुल्म कहलाती है, हक बात पे अमल करने के मुकाबले में जुल्म की दावत जुल्म कहलाती है, अच्छे अमल के मुकाबले में बुरे अमल का वजूद लाना यह जुल्म कहलाता है। मेरे दोस्तों, ये शरीयत की तालीमात है। तवासी बिल हक करना है। रब ने आपको जितना इल्म दिया आप उतने इल्म के आलिम हैं, जितना अल्लाह ने तक़वा दिया उतने तक़वे के मुत्तक़ी हैं, जितनी अल्लाह ने तहारत दी है उतने आप मुताहिरीन हैं। आपकी जिम्मेदारी है अपने इल्म के मुताबिक आप दावत देंगे। जहां बंदे को समझ ना आए अकाबिर से पूछ लेगा, जहां बंदा बता न सके अकाबिर से मशवरा करेगा। इसे तवासी बिल हक कहते हैं। पूरी जिंदगी इस काम को करना है। मसलक अहले सुन्नत वल जमात, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। तवासी बिल हक की जिम्मेदारी है हमारी। अब तवासी बिल हक की बुनियाद पे एक जुमला कहता हूँ। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे परवाने शमा पे आके जल रहे होते हैं, तुम वैसे जहन्नम में गिर रहे हो, मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ के तुम्हें बचा रहा हूँ। तो पैगंबर की वफात के बाद पैगंबर के वारिस उलमा हैं, पैगंबर के वारिस जमात उलमा हैं। अब वारिस को वही चीज मिलकर विरासत हासिल हो जाती है जो मूरस छोड़ के जाता है। अगर वालिद मोहतरम जमीन छोड़ के जाए, औलाद जमीन की मालिक कहलाती है। जायदाद छोड़ के जाए, औलाद जायदाद की वारिस कहलाती है। वालिद माल दौलत छोड़ के जाए, औलाद माल दौलत छोड़ के जाती है। मेरे पैगंबर क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। फरमाया लोगों याद रखना, हम उलमा अंबिया की जमात हैं। अंबिया की जमात जो छोड़ के जाए वो सदका होती है। वो क्या है? फरमाया इन्नमा
इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। उलमा कराम की जमात सुनो, पैगंबर इल्म छोड़ के जाता है जिस इल्म की बुनियाद पे उलमा अंबिया के वारिस करार पाते हैं। जिस आलिम ने जितना इल्म पैगंबर से लिया उतना बड़ा दर्जा पाया। ये तवासी बिल हक है। और मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया है, बात आई है तो कहता जाओ, मेरा ये उन्वान नहीं था, लेकिन हदीस पाक का जुमला आया तो मैं थोड़ी तशरीह करते जाऊं। क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो फरमाते हैं यहाँ जुमला बड़े समझने का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरस, का अंबिया की जमात न किसी माल और दौलत की वारिस बनती है, न माल और दौलत की वारिस बनाती है, बल्कि क्या है, जो इल्म छोड़ के जाए, मा तरकनाहु सदका, वो इल्म बिसदका, जो कुछ मालियत छोड़ के जाए वो मालियत बिसदका। इसी बुनियाद पे अम्मा जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जानशीन पैगंबर, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर के दरबार में आकर बाग़ फिदक का सवाल किया था, तो अबू बकर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा, मुझे बाग़ फिदक देने में कोई झिझक नहीं है, कोई आर नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आप अपने चचा अब्बास से पूछ लीजिए, अपने सरताज अली हैदर से पूछ लीजिए रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो इस बात को वेरीफाइड करेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे, जिस पैगंबर की विरासत की बात आप फरमा रही हैं। आपके वालिद मोहतरम हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती। अगर आपको जमीन चाहिए, फिदक की जमीन की पैमाइश कर ले, 10 गुना बढ़ के अबू बकर जमीन आपके कदमों पे निसार कर देगा, लेकिन ये जमीन की विरासत आगे नहीं चलती। आपके वालिद मोहतरम का फरमान है। तो अम्मा जान ने फरमाया था, मुझे जमीन की लालच नहीं है, जमीन की हवस नहीं है, मैं माल की मालिक नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं आई इसलिए थी, मैं चाहती थी अब्बू की निशानी मिल जाए। लेकिन अब अब्बू ही का फरमान पता चला है कि विरासत औलाद में मुंतकिल नहीं होती, मुझे अब्बू के हुक्म मानना है, जमीन नहीं चाहिए। हज़रत नानोतवी फरमाते हैं, फरमाया इधर एक लफ्ज़ पे गौर करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा तरकनाहु सदका, जिसे हम छोड़ जाएं वो सदका होता है। फरमाया सदके के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, मुतसद्दिक, सदका करने वाला जब सदका कर रहा हो तो अपने माल का मालिक भी हो। नंबर 2, सदका करने वाला सदके के वक्त जिंदा सलामत भी हो। वरना वफात वाले के माल को सदका वारिसिन से पूछे बगैर कैसे करेंगे? ये अपना माल है ना, उसका मालिक हो। मैं मिसाल देता हूँ, मौला अतीक रहमान साहब की बकरी ठहरी हो, मैं पकड़ को सदका, ये सदका नहीं है, ये गस्ब है। ये तो मैं किसी की माल पे डाका डाल रहा हूँ, उसके पूछे बगैर सदका, सदका बनता तब है जब मैं अपने माल का मालिक हूँ, फिर सदका बनता है। हजरत नानोतवी ने फरमाया, पैगंबर की विरासत इल्मिया, विरासत मालिया, ये सदका बनती है तो 2 चीजें पैगंबर इस्लाम में साबित है। हुजूर वफात नबी के बाद भी अपने माल के मालिक भी हैं, अपनी कब्र में जिंदा भी। नारे तकबीर, ताजो तख्तो खत्म नबूवत, हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी। हाथ उठा के देना, अकीदा होवे जोर ला के, अकीदा हयातुन नबी, मसलक हक अहले सुन्नत वल जमात। नारे तकबीर। मा तरकनाहु सदका, फरमाया सदका बनता ही तब है जब मुतसद्दिक माल का मालिक हो, अपनी कब्र में जिंदा भी हो। काजी सलाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद से 150 साल पहले के आदमी है। तफसीर मज़हरी सूरत अज़ाब
آیت نمبر 53 وما کان لکم ان تؤذوا کے تحت اس آیت کی شرح یوں لکھتے ہیں، فرمایا لوگوں یاد رکھنا، قلت وجاز ان یقول لاجل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی لانه لم یورث ولم یطعم ازواجه صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کے صدقے کی بات ہے تو پیغمبر نے صدقہ چھوڑا، علم کا چھوڑا، وتواصوا بالحق میں تواصی حق یہ ہے ہم پیغمبر کے اس اعمال کے صدقہ علم کو لے کر دنیا میں جائیں گے، علوم پھیلائیں گے، تعلیمات پھیلائیں گے، فرامین پھیلائیں گے، احکامات پھیلائیں گے، پیغمبر کی باتیں، پیغمبر کی حدیثیں، پیغمبر کے ارشادات دنیا میں جا کر بتائیں گے، اسے تواصی بالحق کہتے ہیں۔ اور اگر اس دعوت کے زمرے میں، اس دعوت کے نتیجے میں، اس دعوت دین کی پیدائش میں تکلیفیں آئیں تو تکلیفوں پہ دعوت چھوڑ دینی ہے، تکلیفوں پہ دین کی باتیں پھیلانا کم کر دینی ہے، تکلیف آنے پر سچا عقیدہ مسنون عمل کی دعوت چھوڑیں گے؟ کہا جی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا تواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کی دعوت کے نتیجے میں مشکلات آتی ہیں، آزمائش و آلام اور مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، یہ صبر کر کے دکھاتے ہیں، دعوت نہیں چھوڑتے۔ تبھی امام شافعی نے فرمایا کہ یہ اکیلی صورت اترتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس قرآن کریم کی 4 باتوں کے مصداق ہمارے مولانا، ہمارے مخدوم حضرت پیر سیف الرحمن علیہ رحمت الرحمن اس کے مصداق تھے، عملی طور پہ تھے۔ خدا کی قسم اس بندے کا عقیدہ ایسے ٹھیک ہے جیسے چڑھتے سورج پہ ہمیں یقین ہے، اس کا عمل ایسے مسنون ہے جیسے ہمیں چڑھتا سورج صاف نظر آتا ہے۔ دعوت کا اثر آج دنیا دیکھ رہی ہے، صبر کے اثر کا بول بالا دنیا میں۔ میرے دوستو، میں اسی باتوں پر آپ کی خدمت میں جملہ کہوں گا، ہم نے شیخ کی وفات کے بعد اس دعوت کو نہیں چھوڑنا، ہم نے صحیح عقیدہ، مسنون عمل، تواصی بالحق کی دعوت، تواصی بالصبر کے معاملات کو اپنانا ہے، ان کی اولاد کے ساتھ رہنا ہے، شیخ کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ کرتے ہیں اس پر ارادہ؟ سارے دوست کرتے ہیں؟ یہ دعوت کو لے کر چلیں گے؟ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔